चलो लास्ट क्लास का कुछ होमवर्क तो नहीं? नहीं था सर। 19 सम था। यस 19 सम था। यस कैश बुक बनाना, कैश बुक और जर्नल था। 19 सम। यस आया? हाँ देख लो। अरे लॉन्ग राइड तो कर लेंगे। चलो चेक द आंसर। 19 सम इक्विटी शेयर। पहले मैं जर्नल बता रहा हूँ, उसके बाद कैश बुक। सो जर्नल में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 lakhs, then equity share allotment to capital to premium 1064 white, then call in arrear to equity share allotment, that is 7500, then equity share first call to equity share capital 4 lakhs, and call in arrear to equity share first call 3000, and equity share capital to share forfeiture to call in arrear प्रीमियम भी equity share capital debit प्रीमियम debit to forfeiture to call in arrear। कैपिटल में 15,000, प्रीमियम 3,000 to forfeiture 7,500 to call in arrear 10,500। और कैश बुक में डेबिट साइड पे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12 lakhs, फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 9,92,500, फिर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3,97,000, एंड ये बाजू क्रेडिट साइड buy equity share application 2 lakhs and buy balance CD 22 lakh 23 lakhs 89,500 23 lakhs 89,500। परफेक्ट। जो लोगों ने नहीं किया आज क्लास के एंड में बैठ के करके जाने का है, ठीक है? show me the book and then go, you have to complete the sum। now कैश बुक और जर्नल अलग चाहिए और पूरा कंप्लीट करके जाना है, ठीक है? चलो now see the last class we did interest on call in arrear and interest on call in advance, remember? What is the rate of interest on call in arrears and rate of interest on call in advance? How much of call in arrears? Yeah, 10 ki 12. Yes Vyo, 10 interest on call in advance। Yes, Dheer. Interest on call in advance. Oh, Dheer. Yes, sir. Interest on call in advance. 12. Ki 10. Bakka. Interest on call in arrear was at the rate of 10%. Please be quiet. And interest on calls in advance was at the rate of 12%. Okay. But the thing is, you do not have to calculate interest on each and every problem. Okay. Yes. You have to do interest only if it is specified. अगर specify नहीं किया तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? Now, let's see. Right. All of you look at this sum number 18. 18th sum. Look at sum number 18. It's a module sum, page 237. Page 237. Sum number 18. Okay? Sum number 18, page 237. ध्यान से देखना। A limited company with an authorized capital of 20 lakh rupees divided into shares of 100 each. Tell me, authorized capital, are you concerned? No. 20 लाख रुपए का कैपिटल है, 100 रुपए के शेयर्स में डिवाइडेड है। How many shares do they have in authorized capital? 20,000. Is that correct? Page 237. You get it? 20,000 shares of 100. That's just authorized. तो कोई लेना देना नहीं है। Issued for subscription 10,000 shares payable as follows.
What's the subdivision? It is 25 on application, 30 on allotment, then 25 on first call, and 20 on first call, and बचा कितना है? 25 on final call. Is that right? Match हो रहा है perfect 100? Yes. Right? Balance as and when required. तो balance अभी तक I think मंगवाया नहीं, as and when required बोल के छोड़ दिया. The subscription list closed on 31st Jan when the application money on 10,000 shares was duly received and the allotment was made on 1st of March. The allotment amount was received in full, but when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount on 1,000 shares held by him, and another one with 500 shares paid the entire amount on his shares. Give journal entries in the books of the company to record these capital transactions, assuming that the amounts due were received within 1 month of the date they were called. मिला? So, have they discussed anywhere about interest? No. इधर interest का कुछ calculation करने की जरूरत नहीं. Let's begin with the first entry. Simple normal journal का entry है. First one क्या होगा? Bank to equity share application. Just think and tell me, is there any oversubscription? How many shares did we ask for? No, 20 was authorized. 10,000. Issued for subscription 10,000 shares और application भी कितने का आया है? 10,000. There is no oversubscription as such. How much will get on application? 25. 10,000 into 25, that is 2,50,000. Or if you got that, 2,50,000 का application money received, right? बराबर है? Then what? Equity share application to equity share capital. इधर तो हाँ इधर डेट से सर. पहला application का पैसा आया किधर? Subscription list closed on 31st Jan 16. Application received is on 31st Jan 16. Can you all see that? कैसे समझा मेरे को? The subscription list closed on 31st Jan when the application money was received. Did you get it? What should be the date of application to capital? First March. How do you know that? Clear cut दिया है. When the allotment was made on 1st March. Can you see that? 1st March 16. This is application to capital. Application transferred to capital. This is also 2,50,000. Okay. Also 2,50,000. Then what? You receive the allotment, right? So you do the allotment entry. Allotment due. Allotment due की entry किस डेट पे होगी? चलो सोच के बताओ. Allotment due की entry किस तारीख को होगी? बोलो. Allotment due will be on which date? Yeah. कौन से दिन पे होगा allotment due? मैं बताया था एक बार हमने डिस्कस किया था डेट से अगर याद होगा. दिया है यहाँ पे कोई डेट allotment due किस दिन पे होगा? So this date. Okay? जिस डेट पे आप ट्रांसफर करते हो ना उस डेट पे ही आप ड्यू अमाउंट की एंट्री कर देते हो. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. दिस विल बी हाउ मच? 10,000 into 30, that is 3 lakhs. बराबर है? Got it? सेकेंड और थर्ड एंट्री का डेट सेम रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फो. वैसे ही फिफ्थ और सिक्स्थ का डेट सेम रहेगा. बराबर है? समझ में आया? वैसे ही आपका सेकेंड और थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ का डेट विल रिमेन सेम इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फो. वैसे ही आपका सिक्स्थ और सेवेंथ का डेट विल रिमेन सेम इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फो. सो अलॉटमेंट टू कैपिटल, दिस इज अलॉटमेंट ड्यू. मतलब क्या है कि जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन अलॉटमेंट ड्यू मंगवा लिया. अब रिसीव्ड की एंट्री किस दिन पे है? allotment received.
दिया है क्या? नहीं दिया। कुछ नहीं दिया है, कुछ तो हिंट दिया है। हाँ 3 months 1 month 3 months नहीं का है कुछ। देखो 20% on first call 3 months after allotment, दिख रहा है? वो तो फर्स्ट कॉल आफ्टर अलॉटमेंट है। ये कब आएगा पैसा रिसीव करने का? 1 month later, yes, perfect. This will be 1/4/16. How I decided this? Last line, very good. Last line, क्या दिया है? Amounts were received 1 month after they were called. Can you see that? Yes. तो 1 महीने बाद आपको पैसे मिल रहे हैं, है ना? Yeah. तो 1 मार्च को अगर ड्यू एंट्री है तो रिसीव की 1 अप्रैल को क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दैट शुड बी व्हाट? 3 lakhs, am I right? हेलो, समझा कि नहीं? Is this clear? That is the amount received. Okay? Cool. Now, you go for first call due. First call due is 3 months after the allotment. So, यहाँ से 3 months की यहाँ से 3 months. यहाँ से 3 महीने लेने हैं. That is 1/6. Received से नहीं लेने हैं. कहाँ से लेने हैं? Due. जो भी जंप दिया है वो हमेशा ड्यू टू ड्यू का रहता है. Is it clear? 3 months after allotment बोला है, मतलब कहाँ से 3 months? ड्यू से. रिसीव तो कुछ भी हो सकता है, 15 दिन 20 दिन, कभी 1 महीना हो दिया है क्वेश्चन, उसके हिसाब से लेने का. जो डिफरेंस रहेगा अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम ड्यू टू ड्यू. ओके, रिमेंबर दैट. सो ड्यू टू ड्यू 1st June, व्हाट एंट्री यू पास? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रहेगा? 10,000 into 20, that is 2 lakhs. Then when the time came to receive, receipt की डेट क्या होगी? हाँ, रिसीट की डेट होगी 1/7/16. How you know? 1 month later. यहाँ आके कुछ तो झोल हो रहा है. क्या हो रहा है देखो. एक बंदा है जो पैसे नहीं दे रहा, उसको क्या बोलते हैं? कॉल इन अरियर. और एक बंदे ने सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया, इसको क्या बोलते हैं? कॉल इन एडवांस. कॉल इन एडवांस क्या है हमारा? एसेट है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी. तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक कॉल इन अरियर टू फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस. इज दिस क्लियर? अभी क्या होगा? कॉल में कितना एक्सपेक्टेड था आपको? 2 लाख. फिर कॉल इन अरियर कितने पे डिफॉल्ट हो रहा है देख लो. 1000 शेयर्स पे कितना नहीं दिया? 20. तो 20,000 हुआ कॉल इन अरियर. व्हाट इज योर कॉल्स इन एडवांस? वो ढूंढ लो. व्हाट इज योर कॉल्स इन एडवांस? ये 25 रुपया उसने टाइम से पहले दे दिया. ऑन हाउ मेनी शेयर? 500 पे. तो 12,500 का कॉल्स इन एडवांस है. 192.5. तो बैंक में क्या सीन हुआ? 2 में से 20 तो नहीं आया, 180 आना चाहिए. 180 में एक्स्ट्रा आ गया 12,500. तो 180 प्लस 12,500 कितना होगा? 1,92,500. Did you get this point? कॉल इन एरिया तो 1000 बार किया तो 20,000 कम मिला, तो यू शुड हैव गॉट 1,80,000. बट 1,80,000 में एक डेट साने ने ज्यादा पैसा दे दिया. So you got 1,92,500 in bank. आप आराम से क्रेडिट माइनस डेबिट भी कर सकते हो स्ट्रेट. वेरी सिंपल. अंडरस्टूड? सो यहाँ क्या होगा आपका? फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एंड दोनों कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड. ओके, अब सेकेंड कॉल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बोल के छोड़ दिया. So you can stop your sum at this point. Well, even if you don't pass the entry for second call, it is okay. अब वो करना है तो कर सकते हो, लेकिन आपका डेट क्या रहेगा? डैश. Okay? Otherwise you can even skip it. आगे कुछ बोला नहीं है सेकंड कॉल का.
करना है तो कर सकते हो। क्या होगा सेकेंड कॉल का एंट्री? सेकेंड कॉल टू कैपिटल विल बी हाउ मच? 2,50,000. Second call to capital will be 2,50,000. Second call to capital will be 2,50,000. What will be the entry for receiving the second call? Bank. Call in arrear. Once a defaulter, always a defaulter. Then calls in advance. ये set off होगा उधर 2 second. Okay. So second call to capital will be 2,50,000. And then what? Second call to capital. ये ऑप्शनल है, नहीं किया तो भी चलेगा। मैंने आपको बताया था याद है, जहाँ पे छोड़ देते हैं वहाँ पे आप सेकेंड कॉल का डिटेल नहीं है, फाइनल कॉल का डिटेल नहीं है, यू कैन ड्रॉप इट, इट्स ओके। ये एक्स्ट्रा ये इसका कोई मार्क्स मिलेगा नहीं। 2,50,000 एंड when you receive bank, call in arrear, call in advance to equity share second and final call. So this will be 2,50,000. कॉल इन अरियर कितना आएगा आपका दिस टाइम? 25,000. कैसा समझा? हेलो, डिड यू गेट इट? और बैंक में आएगा आई थिंक 2,12,000. ओके, दिस इज अ मॉड्यूल सम. लास्ट के 2 एंट्री में अगर कुछ गलत लिख दिया तो कुछ दिक्कत नहीं है, चलेगा ना? सर डेट रॉन्ग लिखा तो कितना आ गया? 0. अभी का इसमें 1. लास्ट का 2 एंट्री कुछ है नहीं, एक्स्ट्रा है. नाउ जी हमने ये चीज 12th में भी सीखी हुई है, इसको बोलते हैं COTC. और COTC कंसिडरेशन अदर देन कैश. रिमेंबर? So consideration other than cash में क्या advantage होता है companies को? Companies can issue shares for cash also and for some other assets also, right? So if in the IPO company has got let's say 5 lakh rupees, IPO में कंपनी को 5 लाख रुपया मिला, तो क्या एंट्री करेगा? IPO में 5 लाख मिला तो बैंक टू कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख मिला, उस 5 लाख का उसने मशीन खरीदा, तो मशीन टू बैंक. तो क्या हुआ? बैंक टू कैपिटल और मशीन टू बैंक. अल्टीमेटली एसेट ही खरीदना है, तो वो क्या कर सकते हैं? इट कैन अप्रोच द मशीनरी वेंडर एंड इट कैन से हम आप ही को शेयर दे देते हैं, आप शेयर होल्डर बन जाओ और आप हमें मशीन दे दो. सो क्या एंट्री बनेगी नेट? मशीन टू कैपिटल. मशीन टू कैपिटल में क्या हुआ? कंपनी को पैसे नहीं मिले, कंपनी को क्या मिला? एसेट मिला कोई और, एंड वो सामने वाले को शेयर्स मिल गए. दोनों का फायदा है. क्यों फायदा है? कंपनी का क्या फायदा हुआ? कैश बच गया, कैश रिटेन रह गया कंपनी में, देने की जरूरत नहीं है. ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि सारा आईपीओ का एसेट ले लिया, सारा आईपीओ का एसेट नहीं लेते, थोड़े थोड़े पैसों का एसेट लेते हो, तो आपको कैश बच जाता है, कंपनी में कैश बच जाता है. और सामने वाले का क्या फायदा हुआ? शेयर्स मिल रहा है. अगर अच्छा कंपनी है तो इट कैन मेक मोर प्रॉफिट्स, इट कैन मेक मोर प्रॉफिट्स. करेक्ट? Yes or no? So that is what is COTC, consideration other than cash. इसमें हमने और varieties भी देखी थी, पता है? एम्प्लॉयज को भी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दिए जाते हैं, उनके सैलरी के बदले उनको शेयर्स दिए जाते हैं. उसको क्या बोलते हैं? ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान. बराबर है? डायरेक्टर्स और हायर लेवल मैनेजमेंट को भी दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी. उसको क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी. एंड प्रमोटर्स को भी दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर देयर सर्विसेज. वहां पे हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? गुडविल. ओके, गुडविल टू कैपिटल, वहां पे हो जाता है गुडविल टू कैपिटल. इन सारे सिचुएशंस में क्या होता है? हमें कोई और एसेट मिलता है या कोई और एक्सपेंस होता है जिसके बदले शेयर्स जा रहे हैं. बैंक टू कैपिटल नहीं होता, मशीन टू कैपिटल होता है, या फिर ESOPs के वक्त सैलरी टू कैपिटल होता है, या स्वेट इक्विटी के वक्त फीस टू कैपिटल होता है, या प्रमोटर्स को दिया तो गुडविल टू कैपिटल होता है. तो कंपनी को कैश नहीं मिल रहा है, कोई और एसेट या एक्सपेंस डेबिट हो रहा है. दैट इज व्हाट इज COTC, कंसिडरेशन अदर देन कैश. गॉट इट? सो यहाँ पर बाकी सब नहीं है, आपको सिर्फ वही एसेट वाला कंसेप्ट है कि हमने एसेट खरीदा और सामने वाले को शेयर्स इश्यू कर दिया.
एसेट खरीदा और सामने वाले को क्या इश्यू कर दिया, शेयर्स इश्यू कर दिया। कंसेप्ट क्लियर है? लुक एट सम नंबर 16 मॉड्यूल सम। बैलेंस शीट अभी नहीं करेंगे, बैलेंस शीट बाद में करेंगे, खाली जर्नल करना है अभी। 16 सम 16 रीड, छोटा सा सम है, 3-4 एंट्रीज का। X company limited was incorporated with an authorized capital of 90,000 equity shares of 10 each. Are we concerned? 90,000 is the upper limit. The company purchased land and buildings from Y and company for 4 lakhs payable in fully paid up shares of the company. क्या खरीदा बेटा उसने? लैंड एंड बिल्डिंग, और बदले में पैसा नहीं दिया, शेयर्स दिया। तो पहले हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, उसका क्या एंट्री होगा? डायरेक्टली हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल, ये दो पार्ट्स में करते हैं। याद है व्हाट आर द टू पार्ट्स? पहले हम एसेट लेते हैं क्रेडिट और फिर हम शेयर्स देते हैं, बराबर है? ऑलवेज दिस ट्रांजैक्शन इज डन इन टू पार्ट्स। व्हेन यू बाय द एसेट यू डायरेक्टली डोंट गिव शेयर्स, पहले यू बाय द एसेट ऑन क्रेडिट, बाय द एसेट ऑन credit. What is the entry for buying the asset on credit? Land and building to कौन है क्रेडिटर? वाई एंड कंपनी। वाई एंड कंपनी से 4 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, बराबर है? This is being land and building acquired या purchased। अभी इमेजिन करो हम लोग वाई को पैसा दे देते, तो क्या एंट्री करते? वाई एंड कंपनी टू बैंक करते है ना, समझो उसको पैसा देते, कैश देते तो वाई एंड कंपनी टू कैश, चेक देते तो वाई एंड कंपनी टू बैंक, शेयर दिया, इक्विटी शेयर दिया तो वाई एंड कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 4 लाख। कितने शेयर्स इश्यू किए होंगे? 40,000। being issue of 40,000 equity shares। कैसे समझा 40,000? 10 रुपए के शेयर है, 4 लाख रुपए देना है तो 40,000 शेयर एट पार इश्यू है, कुछ दिया नहीं है प्रीमियम के बारे में। So 40,000 shares of 10 each towards payment of assets, towards payment of assets, बराबर है? टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ एसेट हमने 4 लाख के शेयर्स इश्यू कर दिए, तो हमें मिल गया लैंड एंड बिल्डिंग और पैसे गए नहीं, पैसे की जगह वाई एंड कंपनी हमारा क्या बन गया? शेयर होल्डर था। ठीक है, आगे कुछ और भी दिया। द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वर इश्यूड टू द पब्लिक एंड वर फुली सब्सक्राइब्ड। बैलेंस शेयर्स कहां से आ गए? 90,000। व्हाट वाज द ऑथराइज्ड कैपिटल? 90,000 शेयर्स। उसमें से यहाँ कितने इश्यू हुए तो बचे कितने? वो किसको इश्यू किए जाए? पब्लिक मतलब क्या? आईपीओ। उसका एंट्री क्या होगा? इधर को दिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट का सेकंड का, पूरा पैसा उठा लो एक साथ, क्या करेंगे? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 5 लाख। ये समझ में आया? बैलेंस ऑफ द शेयर्स का मतलब समझा? being issue of 50,000 equity shares of 10। पढ़ो, लास्ट लाइन पे दिया बैलेंस ऑफ द शेयर्स वर इश्यूड टू द पब्लिक एट पार। तो 4 लाख के शेयर्स हमने वाई एंड कंपनी को इश्यू किया और 5 लाख के शेयर्स हमने पब्लिक को इश्यू किया और पैसा रेज किया आईपीओ में। इज दिस क्लियर? यू गॉट इट? तो ऐसे मत समझना कि सीओटीसी है तो सारा का सारा सीओटीसी है, नहीं। कंपनी को 100 करोड़ का शेयर है, कंपनी का 100 करोड़ का, तो उसमें से 50 करोड़ का आईपीओ ला सकता है, 10 करोड़ के सामने एसेट ले सकता है, 10 करोड़ के ईसॉप दे सकता है, 5 करोड़ का स्वेट इक्विटी दे सकता है, उसकी मर्जी। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर। डायरेक्टर मतलब कंपनी का सिंपल प्रिंसिपल है 1 शेयर 1 वोट। जिसके पास ज्यादा शेयर्स उसका जनता है, उसका वोटिंग राइट्स, उसका डिसीजन, बराबर है? 1 share 1 vote। Those who have the maximum number of shares they can decide for the company। तो जो डिसीजन लेना है वो लोग ले सकते हैं। But yes, obviously ज्यादा shares issue करना it's not in the favor of the company because
The more the shares are issued, what happens? खाने वाले मुंह ज्यादा हो जाते हैं तो खाना पर पर्सन कम हो जाता है, बराबर है? पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा किया ना, जीडीपी इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? जीडीपी पर कैपिटा। इंडिया का जीडीपी अराउंड $5 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन है, वो मैटर नहीं करता। खाने वाला मुंह कितने? 150 करोड़, उसमें डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा जीडीपी इज व्हाट मैटर्स। जैसे कंपनी का टोटल प्रॉफिट्स मैटर नहीं करता, वो प्रॉफिट्स पर शेयर कितना है, ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। तो जितने आप शेयर ज्यादा इश्यू करोगे, जितना कैपिटल ज्यादा रिस्क होगा, उतने शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो उतना पर शेयर प्रॉफिट क्या होते जाएगा। एक घर है जिसमें 5 लोग रहते हैं और इनकम 10 लाख है, तो पर पर्सन कितना जा रहा है? 2 लाख जा रहा है। और एक घर है जिसमें 2 लोग रहते हैं और इनकम 10 लाख, तो 5-5 लाख जा रहा है ना पर पर्सन। यही होता है शेयर्स और कंपनी में, जितने शेयर्स कम उतना बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स टुगेदर, दे आर गेटिंग मोर चंक ऑफ प्रॉफिट पर शेयर, मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट। इज इट क्लियर? That's how it works. Okay, next one. सिमिलर लाइन पे एक सम है, हमने ये 12th में शायद किया हुआ है, आपको समझ में आएगा देखेंगे तो। सम नंबर 36। गेम्स एंड कंपनी लिमिटेड acquired the running business of Mr. Gunthe. दिख रहा है? गेम्स एंड कंपनी लिमिटेड acquired the running business of Mr. Gunthe. याद है? इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है आगे। Business consisted of assets of 50 lakhs and liabilities of 8 lakh 20। इधर क्या खरीदा? सिर्फ एसेट। अभी क्या है? एसेट और लाइबिलिटी दोनों है, ले सकते हो क्या? हाँ, क्या होगा? मैं तुम्हारे बिजनेस से खाली एसेट ले रहा हूँ, सपोज 50 लाख का एसेट ले रहा हूँ, तो मैं आपको कितना देगा? 50 लाख। लेकिन आपका 50 लाख तो एसेट ले ही रहा हूँ, और आपका 8 लाख 20 का मैं लाइबिलिटी भी टेक ओवर कर रहा हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप पे जो उधार है आप पे मत करो, मैं करूँगा। तो ऑब्वियसली मैं उतना पैसा आपको ज्यादा दूंगा कि कम? तो मैं आपको कितना पैसे दूंगा? 41 लाख 80। गॉट इट? तो कोई बात नहीं है, बिजनेस टेक ओवर में यही होता है, एसेट आता है, सामने लाइबिलिटीज भी आता है, और नेट अमाउंट हम लोग देते हैं ओनर, बराबर है? सो स्टार्ट करो। पहला एंट्री क्या होगा? बिजनेस टेक ओवर का एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू, कौन है वो क्रेडिटर? कौन है? गुंथे। तो सन्ड्री एसेट लिखना है, नाम नहीं दिया है, तो सन्ड्री एसेट्स डेबिट 50 lakhs टू सन्ड्री लाइबिलिटीज कितना? 8,20,000 to Gunthe account, that is 41,80,000. Gunthe is that sole proprietor जिसका बिजनेस हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं। Being आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर भी लिख सकते हो, या सिंपली बिजनेस टेकन ओवर। बिजनेस टेकन ओवर, बिजनेस टेकन ओवर मतलब यू आर सिंपली टेकिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सर बिजनेस होता तो ये कुछ आता नहीं, बिजनेस नहीं सर, प्राइवेट लिमिटेड होता तो ये सब कुछ नहीं आता। क्यों? प्राइवेट लिमिटेड मतलब उसका नाम ट्रांसफर होगा ना कि ये ओनर की जगह ये आया। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेलिंग, वन कंपनी सेलिंग द बिजनेस टू अनदर, तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम आएगा। यहाँ पे गुंथे इज द ओनर, इसके लिए गुंथे का नाम आया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नो वन इज ओनर, द लिमिटेड कंपनी डील्स विद द अदर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम आया। इंटरनली शेयर सबको इंडिविजुअल इश्यू होंगे, बट बुक में जर्नल एंट्री आएगी प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कर रहा है तो उसका भी है, लिमिटेड कंपनी सेंड शेयर्स टू अदर लिमिटेड कंपनी। नाउ इट विल गेट नलिफाइड बट एसेट टू लायबिलिटी टू पार्टी, जो भी पार्टी है जिसको पैसा देना बाकी है। अब ये पार्टी को हम लोग ने कैसे सेटल किया? आर वी गिविंग कैश? नो, व्हाट आर वी गिविंग? बट आगे बढ़ो, व्हाट इफ द शेयर्स आर इश्यूड एट पार और एट प्रीमियम? तो इन फर्स्ट केस यू आर इशूइंग द शेयर्स एट पार। एंट्री क्या बनेगी इशूइंग द शेयर्स एट पार की? बोलो। गुंथे अकाउंट डेबिट, इसको सेटल किया टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना देंगे?
41 lakh 80,000. Is that clear? 41 lakh 80,000 being issue. कितना shares issue किया रहेगा? बोलो. 41 800 equity shares of 100 each towards payment of business. Payment of business. तो यहाँ पे बिजनेस खरीदा और सामने कितने शेयर्स दिए उसको? 41,800. बराबर है? तो हुआ क्या? ये गुंथे गुंथे उड़ गया. ये उड़ने ही वाला है. नेट नेट क्या हुआ? कंपनी में एसेट बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा और ये क्या है? कैपिटल बढ़ गया. एसेट बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा और कैपिटल बढ़ गया. उतना आपका कैपिटल आ गया. शेयर होल्डर बन गया गुंथे फॉर 41,800. ओके, कैसे मिले 41,800? समझ आया? 41,80,000 डिवाइडेड बाय 100. 100 रुपया फेस वैल्यू. कभी कभी क्या होता है, सुनना ध्यान से, ऐसे देते हैं. अभी गुंथे को कितना देना है? 41,80,000 देना है. आपको दिया होगा वी पेड 42,80,000. वी पेड 42,80,000. गुंथे को देना कितना है? नहीं, वी पेड 42,80,000. वाई एक्स्ट्रा? गुडविल. उसको बोलते हैं गुडविल. और प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है कि बिजनेस कभी बुक वैल्यू पे डील नहीं होता. तो वो जो एक्स्ट्रा 1 लाख है वो क्या है? तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी सन्ड्री एसेट्स डेबिट 50 lakhs, गुडविल डेबिट 1 lakh, टू सन्ड्री लायबिलिटी 820, टू गुंथे 42 lakh. 4180 की जगह 4280. तो एक एसेट बढ़ जाएगा. व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा एसेट? इसका ऑपोजिट भी होता है. आपका बिजनेस कभी कभी रिसेशनरी पीरियड में बुक वैल्यू के नीचे भी सेल हो सकता है. ये तो बुक वैल्यू है, बैलेंस शीट वैल्यू है. जनरली बिजनेसेस आर डेल्ट विद एट अ हायर वैल्यू देन द बुक वैल्यू. पता है ना, बैलेंस शीट जो बनाते हैं दैट इज बुक वैल्यू, आज के डेट की वैल्यू. बट बिजनेस कभी वो वैल्यू पे सेल नहीं होता. वो ज्यादा मांगता है फ्यूचर प्रॉफिट्स के एंटिसिपेशन. बट व्हाट इफ द रिसेशन इज देयर, लॉस मेकिंग और आगे की वैल्यू कम लग रही है. तो मतलब ऐसा दिया है कि गुंथे को 41,80,000 नहीं दिया, 40,80,000 दिया. हमने बिजनेस तो लिया, 50 लाख का एसेट लिया, 8,20,000 का लायबिलिटी लिया. देना था 41,80,000 नहीं, लेकिन दिया 40,80,000. दिया कितना? 40,80,000. तो क्या हुआ? बाइंग कंपनी जो आप खरीद रहे हैं, जो बिजनेस खरीदा, उसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हो गया. वो फायदा किधर जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा. किसमें जाएगा? कैपिटल रिजर्व. क्योंकि लमसम एक झटके में फायदा हो गया. लमसम फायदा. तो हम लोग ज्यादा पैसा देते हैं ना, तो वी आर टेकिंग एन एक्स्ट्रा एसेट, दैट इज गुडविल. और कम पैसा देते हैं तो दैट्स आर प्रॉफिट. तो दैट गोज टू व्हिच रिजर्व? कैपिटल. तो यहाँ पे होगा एसेट्स टू लायबिलिटीज टू कैपिटल रिजर्व टू गुंथे, एंड देन गुंथे को सेटल कर. इज इट क्लियर? वैल्यूएशन से वैल्यू ऑफ बिजनेस इज वैल्यूएशन. हम लोग शेयर से बोलते हैं ना वैल्यूएशन. यही हाँ, वैल्यूएशन. बैलेंस शीट टोटल है क्या वो? वैल्यूएशन मतलब विद गुडविल. शार्क टाइम में तो जो भी आता है कोई बैलेंस शीट पे नहीं बेचते, मल्टीपल्स पे बेचते हैं उसका. तो प्रैक्टिकली ये जो शार्क टाइम वगैरह पे बिजनेसेस बेचने आते हैं ना, या नॉर्मली भी इंटरनेशनल लेवल पे मोस्टली जो बिजनेस डील्स होते हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेस है प्रॉफिट मेकिंग, वो कभी भी लोअर वैल्यू पे सेल नहीं करता, हायर वैल्यू पे करता है. ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि बहुत ही रिसेशनरी पीरियड है और बहुत लॉस मेकिंग कंपनी है. जैसे कि ये था रुचि सोया. रुचि सोया वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी. उसको पतंजलि ने टेक ओवर किया, तो उसको फायदा हो गया. जो वैल्यू थी उससे भी कम प्राइस पे मिला, तो दैट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व इन इट्स बुक्स. तो बैलेंस शीट वैल्यू से भी कम वैल्यू पे अगर मिलता है तो आपका फायदा. वो जनरली लॉस मेकिंग या डिफंक्ट कंपनीज होती है ना, वो सब मिलती है ये प्राइस. प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कोई भी बुक वैल्यू तो छोड़ दो, लोअर वैल्यू तो दूर की बात है, बुक वैल्यू पे भी सेल नहीं होता, उससे डिफंक्ट कंपनी रहती है. अभी ये भी था एक कंपनी, रिलायंस ने टेक ओवर किया था कोविड के वक्त.
फिर वो पीपी किट्स बना के बेच रहा था उसका, ए से कुछ तो नाम था, अमर या ऐसा कुछ नाम था, अमर इंडस्ट्रीज ऐसा कुछ, डिफॉल्ट कंपनी गुजरात का एक था, बैंकक्रप्ट कंपनी था, उसको टेक ओवर, तो ऐसा बुक वैल्यू से कम प्राइस पर मिल गया, फाइन, सो दैट इज कैपिटल। इज दिस क्लियर? उसमें क्या एंट्री आ गया? बिक रही है उसमें डिसोल्यूशन होता है, एसेट्स लायबिलिटी शट डाउन, एंड देन हम लोग बेचते हैं ना अपने एसेट्स, तो रियलाइजेशन बनता है, तो वो सामने वाला पार्टी खरीद रहा है, तो अपने को कैश या शेयर्स व्हाटएवर वी तो शो दैट अपना कंपनी इज सोल्ड टू समवन एल्स, तो खाली हम लोग जो बोला कैश टू रियलाइजेशन या बैंक टू रियलाइजेशन, अल्टीमेटली कैश या बैंक टू रियलाइजेशन के शेयर्स आ जाते हैं, शेयर्स टू रियलाइजेशन, अल्टीमेटली अपने को शेयर्स मिलते हैं इंस्टेड ऑफ कैश और बैंक। और वो लॉस में बेचा उसको, मतलब बुक वैल्यू रियलाइजेशन लॉस हो गया, पार्टनर्स विल बेयर इट, उतना पैसा कम मिलेगा, पार्टनर का कैपिटल ऑटोमेटिकली कम है, आपका बुक वैल्यू है 5 लाख, रियलाइज्ड वैल्यू है 3 लाख, ऑटोमेटिकली कैपिटल विल हैव दैट। ये आएगा आपको, अमालगमेशन करके एक चैप्टर है सीए इंटर में, दैट टाइम विल कम टू नो, उसमें सारा आने वाला है। ओल्ड कंपनीज में डिसोल्यूशन होता है और नया कंपनी उसको खरीदता है, दैट इज द अक्वायरिंग कंपनी, उसमें शेयर कैपिटल बनता है और पुराने को शेयर्स मिलता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट होता है। नाउ वेरी नेक्स्ट केस, शेयर्स आर इश्यूड एट 25% प्रीमियम, शेयर्स आर इश्यूड एट 25% प्रीमियम, तो विल योर फर्स्ट एंट्री चेंज? बताओ, फर्स्ट एंट्री चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, that remains same. What is happening in the second case now? At premium मतलब कुत्ते को बोला कि भाई देख तेरा बिजनेस खरीदा है, तेरे को 41 लाख 80 देने का है, लेकिन हम तुझे 100 रुपए में शेयर्स नहीं देंगे, क्या प्राइस पे देंगे? 125 पे देंगे। क्यों दे रहा है ऐसा 125 पे, हायर प्राइस क्यों डिमांड कर रहा है कंपनी? प्रॉफिट, जो हमारा बाइंग कंपनी उसका बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, तो इट कैन इश्यू शेयर्स एट प्रीमियम, बराबर है? तो 100 का शेयर 125, तो एंट्री क्या बनेगी? बोलते हैं टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट? सिक्योरिटी प्रीमियम। नाउ यू हैव टू डिसाइड हाउ मच विल बी प्रीमियम। वेरी सिंपल, 41 लाख 80,000 देना है, डिवाइडेड बाय व्हाट? कितने रुपए में? 125, उधर 100 रुपया था, इधर 125, 40 33 440, मतलब गुंथे को सेटल किया 41 लाख 80, तो शेयर कैपिटल विल बी 33 44 000, समझा कैसा? इस 33 440 into 100, and what about premium? It is 33 440 into how much? 25. प्रीमियम कितना है आपका? 8,36,000 का प्रीमियम। किसका फायदा हुआ इधर? सेलिंग कंपनी का कि बाइंग कंपनी? बाइंग कंपनी। बाइंग कंपनी इज इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम, बराबर है? बाइंग कंपनी इज इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम। बाइंग कंपनी को एसेट, बाइंग कंपनी ना अपना फायदा हुआ ना, खरीद रहे, गुंठे का फायदा नहीं हुआ, तो सेलर है। हमको एसेट आया 41 लाख 80 में, लेकिन अपना शेयर्स कम गया, डाइल्यूशन कम हुआ, तो अच्छा है, प्रीमियम पे इश्यू है, ओके, हायर प्राइस पे, तो कम शेयर्स इश्यू करना पड़ा। बीइंग 33 440 इक्विटी शेयर्स issued at 25% premium towards payment of business, towards payment of business. और सर अगर शेयर पॉइंट पे आया अभी डिवाइड करके जैसे फ्रैक्शनल शेयर्स जनरली होता नहीं है, बट अगर आता है फ्रैक्शनल शेयर्स तो हम लोग थियोरेटिकली उसको कैश कंसीडर करते हैं, वो भी पे उतना कैश या चेक, उतना बैंक में पैसा दे, फर्क नहीं पड़ता ना, नॉमिनल 200 500 1000 रुपया जो है वो कैश में दे, शेयर्स कभी फ्रैक्शनली डील नहीं ना, कैश में सेट। ओके, समझ में आया? राउंड ऑफ करके जो अमाउंट है, राउंड ऑफ करके आया उतना शेयर, बीच का है वो सब का है, तो माइनर ही रहता है लास्ट में, 0.2 0.5 शेयर्स, उतना कैश नहीं। फ्रैक्शनल शेयर्स आर ऑलवेज देयर विद इफ एट ऑल देयर आर,
जनरली तो वैल्यूएशन से राउंड फिगर रहता है, आता नहीं, आया थियोरेटिकली आता है, आपको भी आएगा। फ्रैक्शनल शेयर्स आर कैश, कैश समझ आएगी वाला। ये पूरा इन डेप्थ आपको अमालगमेशन में यही करना है। पुराना कंपनी बंद होएगा, डिसॉल्व होएगा, कैश के जगह उसको शेयर्स मिलेगा और नया कंपनी में वो कैपिटल बनेगा। ये पूरा चैप्टर है आपको नेक्स्ट ईयर इंटर में। अभी ट्राई करो क्वेश्चन 37, कम ऑन क्वेश्चन 37 ट्राई करो। मैनचेस्टर एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ चेल्सी, करो 37 ट्राई करो। ये मॉड्यूल्स हम नहीं है, हमने जिससे अगला किया वो मॉड्यूल्स 36 है मॉड्यूल। उससे अगला किया ना कौन सा 16 वो मॉड्यूल। ये मॉड्यूल नहीं है लेकिन एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। पेपर में ही आया, एक्चुअल पेपर में भी आया और एमटीपी में भी आया। जो मैंने गुडविल का एग्जांपल दिया, गुडविल वाला सामान है, तो इसमें खाली गुडविल ऐड कर। हायर वैल्यूएशन है तो गुडविल, कम वैल्यूएशन है तो कैपिटल रिजर्व। नहीं, सन्ड्री एसेट अलग दिखाने का, गुडविल अलग दिखाने, क्योंकि वैल्यूएशन वो लोग ने क्वेश्चन में गुडविल बोला नहीं है, हायर वैल्यू दिया, इसके लिए अलग से अपने एसेट दिखाने का हाईलाइट। फर्स्ट एंट्री में आएगी। फर्स्ट एंट्री सन्ड्री एसेट में जितना एक्स्ट्रा उतना गुडविल। तो एंट्री बनेगी एसेट्स डेबिट, गुडविल डेबिट टू लायबिलिटी टू पार्टी एंड देन पार्टी टू कैपिटल का प्रीमियम। वन ट्राई sundry assets debit, goodwill debit to sundry liability to one। एक एक्स्ट्रा एसेट ऐड कर दे, इसका मतलब वो हवा वाला एक एसेट है इनविजिबल, वो भी आप रोज अब वो लोग नहीं आए, दो जन अच्छे, खुशी शाह और दृष्टि, नॉट यस, खुशी दृष्टि। हम लोग कौन है उसमें? मैनचेस्टर। Contribution debit पर आएगा, that's your expense, so P&L debit. Provident fund is like outstanding salary, जमा हो गया है बाकी, that's liability. Provident fund investment is like investment, that is asset. उस पे जो interest है वो हमारा नहीं, normally interest on investment is interest on PF investment इतना नहीं है, that's a life, that provident fund and life. Next पे contribution और provident fund investment debit कर दिया, provident fund और interest on PF सर आपको फुटबॉल पसंद है? वर्ल्ड कप देखते हो? वर्ल्ड कप रात को 3-4 बजे वो फाइनल आज जो भी आपके साथ में का लेक्चर लेना हो सर, क्या छुट्टी दे दो ना एक दिन। बहुत रेयर है सर, रात को चलो खाली वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग कंटिन्यू सर ये ट्रिप में आप अंपायर बन जाते अभी मेरे को 5 छुट्टी मिलेगा ना आपको।
रोज चला वैसे चलो। हो गया आपका? फर्स्ट एंट्री, चलो डन। 3 एंट्रीज। फर्स्ट वन क्या आएगा? सन्ड्री एसेट टू लायबिलिटी टू चेल्सी 10,420 and 580 मिला। देन पहले वाले में लो एट पार है तो चेल्सी टू इक्विटी शेयर कैपिटल 580। दूसरे वाले में प्रीमियम है 100% प्रीमियम है। So 200 so it will be Chelsea to equity share capital to security premium 580 290 290 is it clear? 100 का शेयर 200 में इश्यू किया। ओके क्लियर? all of you look at sum number 5 module sum, very important sum, very important sum number 5 page 235 आज चालू डिवेंचर नहीं सर बहुत सर 7:15 को छोड़ना है आपने sum number 5 last sum of shares उसके बाद डिवेंचर 7 भी बाकी है 6 भी बाकी है 6 7 7 6 और 7 तो बोला ना वो बैलेंस शीट वाला है बाद में करेंगे। 17 भी बाकी है 17 वाला होगा सर इधर क्या सर इधर क्या 17 one is homework बहुत हार्ड है सर shut up 17 one is homework 17 one पे इंटरेस्ट वाला सब है। चलो फिफ्थ सम ले लो। फिफ्थ सम 5 सम नंबर 5 चलो ध्यान दो आपको समझ में आएगा। सम नंबर 5 बहुत प्रैक्टिकल सम है और ऐसा ही होता है आज के दिन पे। इससे भी ज्यादा वर्ड सब्सक्राइब होता है बट ये थोड़ा बहुत तो बॉर्डर पे आता है। सम नंबर 5 देखो JHP Limited is a company with an authorized capital of 10 lakh in equity shares of 10 each. 10 lakh rupees in equity shares of 10 each. Module sir. 10 lakh rupees है वो into shares of 10 each मतलब 1 lakh shares हुआ मिला। Of which 6 lakh shares, oh sorry 10 lakh shares 10 lakh shares of 10 lakh shares of 10 each, of which 6 lakh shares have been issued and fully paid on 30th June 2016. 6 lakh share already issue हो चुका है, fully paid है, वो हो चुका है। The company proposed to make a further issue of 1 lakh of these rupees 10 shares at a price of rupees 14, and the arrangements being of payment being as follows. तो अभी एट प्रेजेंट कितने शेयर्स के इश्यू का बात चल रहा है? 1 लाख। टोटल 10 लाख शेयर्स थे। 10 लाख रुपया नहीं है, 10 लाख शेयर्स है। 10 लाख शेयर्स थे 10 रुपए के, वो ऑथराइज था। उसमें से 6 लाख शेयर ऑलरेडी इश्यू हो चुका है, वो आईपीओ रहेगा। अभी एफपीओ है, फॉलो पब्लिक ऑफर ऑफ 1 लाख शेयर। वो 1 लाख शेयर क्या प्राइस पे आ रहा है? 14 रुपीज पे आ रहा है। व्हाट इज द सब डिविजन? 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 on allotment including premium. So I think it is 1 plus 4 and balance on first and final call. So 7 rupees will be on first and final call. Is that right? ये समझ आया? बराबर है। 2, 5 और 7 premium is with allotment, so it is 1 plus 4. Read further. 2 per share payable to be received by 1st July, allotment to be made on 10th July, and a further 5 rupees premium to be payable, final call for the balance to be made, and the money received by 30th of April. Applications were received for 3,55,000 shares. Issue कितना shares का था? 1 लाख। लेकिन application कितने का आया? 3 लाख
55,000 शेयर्स का आ गया. So over or under subscribed? Very very over subscribed. So how is the company dealing with the applications? Read. Applicants for 5,000 shares were received allotment in full. मतलब पूरा का पूरा जितना अप्लाइड था उतना मिल गया. खुश की दुखी. वेरी वेरी हैप्पी. बराबर है. 5,000 शेयर को फुल अलॉटमेंट मिला 5,000 शेयर्स का. इज दैट क्लियर? Applicants for 30,000 shares received an allotment of 1 share for every 2 applied for. No money was returned to these applicants. The surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. क्या है? तो नया English. They were allotted 1 for every 2 share. The surplus money was not returned and it was adjusted against allotment money. वही हम लोग करते हैं. तो what is the ratio of these 30,000? 2:1. तो 30,000 को कितना अलॉट हुआ है? 15,000 अलॉट हुआ है. बराबर है. 1:2. ये लोग भी हैप्पी है. कुछ तो मिला. पहले वाले ज्यादा हैप्पी है. जितना अप्लाई किया सारा मिला. थर्ड कैटेगरी एक्चुअली आप देखे बिना इधर ही बता सकते हो क्या रहेगा. ये 35 निकाला इसमें से तो कितना बचा? 3,20,000 और एक्चुअल शेयर्स थे 1 लाख. 1 लाख में से कितना 20 गया तो बचा कितना? 80. अपने आप ही मिल जाएगा अपने को. उधर पढ़ो अभी क्या दिया. एप्लीकेंट्स ऑफ 3,20,000 शेयर्स. यू गॉट इट. 355 में से हटाया बाकी. 3,20,000 shares received of 1 for every 4. 1 for every 4 मतलब 80,000. वही आएगा अपने आप. The money due on allotment was retained by the company. The money due on allotment was retained by the company and the excess being returned to applicants. ऐसा कैसा? Retained भी और returned भी. ऐसा कैसा? अलॉटमेंट की अमाउंट अलॉटमेंट तो रिटेन किया लेकिन इनका इतना ओवर सब्सक्रिप्शन है कि पूरा अलॉटमेंट कवर हो गया और उसके ऊपर जो एक्सेस है ना वो रिफंड किया. एक्चुअली प्रैक्टिकली वो भी रिफंड नहीं होता. आपका अलॉटमेंट पूरा कवर हो जाता है ना तो फर्स्ट कॉल में गया. फर्स्ट कॉल पूरा कवर हो जाता है ना इधर एक ही कॉल है तो उसके बाद आप रिफंड करो. अगर सेकंड कॉल होता तो फर्स्ट कॉल कवर हो जाता तो किधर जाता? सेकंड कॉल पे जाता. फिर सेकंड कॉल खत्म होने के बाद रिफंड. बोलने का मतलब एप्लीकेशन का एक्सेस किधर जाता है? अलॉटमेंट. अलॉटमेंट का एक्सेस किधर जाता है? फर्स्ट कॉल के भी ऊपर एक्सेस है वो रिफंड होता है यहाँ इन दिस केस. बट ये प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है. इधर क्या कंडीशन दिया है? ये कैटेगरी का जो एक्सेस है सी कैटेगरी का एक्सेस किधर गया? अलॉटमेंट में. अलॉटमेंट पूरा कवर हो गया तो फर्स्ट कॉल में नहीं डाला. क्या किया? रिफंड. मतलब फर्स्ट कॉल अगेन दे विल हैव टू पे. इज इट क्लियर? ये बोला है तो अपने को इसके हिसाब से जाना पड़ेगा. तो पहले तो एक्सेस ढूंढना है फॉर कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी. तो वर्किंग नोट बनाओ कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी का. पहले कैटेगरी बी देख लेते हैं. कैटेगरी बी कितना है? एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम कैटेगरी बी देख लो. 30,000 into 2 60,000 मिला. कैटेगरी बी ये रहा मिडिल कैटेगरी. 30 into 2 60,000 मिला एप्लीकेशंस. इनसे कितना रिक्वायर्ड है? इनको कितना अलॉट हुआ है? बोलो. एप्लीकेशन रिक्वायर्ड कितना है? 15,000 into 2 30,000. मतलब क्या समझा कि नहीं? बी कैटेगरी में 30,000. ए कैटेगरी का है एक्सेस? सोचा ही नहीं है. बी में 30,000 एप्लीकेशन आए. कंपनी ने बोला नहीं आपको तो 30,000 अलॉट नहीं हुआ है. आपको कितने अलॉट हुआ है? 15 into 2 30. तो इन्होंने भरा 60 है लेकिन कंपनी को रिक्वायर्ड सिर्फ 30 है. तो एक्सेस कितना हुआ? 30,000 हुआ. दिस इज एक्सेस ऑन अलॉटमेंट. Am I right? Is that correct? अभी एक्सेस ऑन अलॉटमेंट 30 है तो कहाँ एडजस्ट किया ये? एडजस्टेड अगेंस्ट
अलॉट एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन 30 है, ये किधर एडजस्ट किया है? एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। क्या इनका अलॉटमेंट अब्सॉर्ब होएगा पूरा का पूरा? चलो देखते हैं कितना पैसा चाहिए अलॉटमेंट में। 5 इंटू 15 कितना होता है? 75। और एक्सेस कितना है? 30। तो पूरा अब्सॉर्ब नहीं होगा। 30 में इनको एक्चुअली भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा? 45 भरना पड़ेगा। तो इधर ही खत्म हो गया, इधर ही इनका नोट खत्म। कैटेगरी सी, कैटेगरी सी का देखो, कैटेगरी सी का क्या सीन है? एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है? एप्लीकेशन रिसीव्ड, गेट ओवर हियर, कैटेगरी सी एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है? 3,20,000 into 2, इन्होंने भरा है 6,40,000। यस है ना, समझा? लेकिन कंपनी ने क्या बोला आपको? तो कितने अलॉट हुए हैं? हाँ जी 80,000। तो आपसे रिक्वायर्ड कितना था? 80,000 into 2 मतलब 1,60,000। तो how much excess they are having? Excess on application is how much? 4,80,000 बराबर है। Excess on application is 4,80,000। क्या बोला है वो लाइन पढ़ो, थर्ड पॉइंट वाला। 3,20,000 the ratio of 1 for every 4 shares held। हाँ, excess money to be transferred to अलॉटमेंट। चलो डाल दिया अलॉटमेंट में। अब देख लेते हैं ना अलॉटमेंट कितना चाहिए इनसे। देखो अलॉटमेंट कितना है? 82 में 4 लाख, लेकिन एक्सेस कितना है इनका? 4,80,000 है। तो पूरा का पूरा अलॉटमेंट अब्सॉर्ब हो रहा है। मतलब इन शेयर होल्डर को अलॉटमेंट में 1 भी रुपया भरने की जरूरत नहीं है। तो लेस अलॉटमेंट रिक्वायर्ड, लेस अलॉटमेंट रिक्वायर्ड इज हाउ मच? 80,000 into 5 मतलब 4 lakhs। तो एक्सेस कितना है? एक्सेस ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस ऑन अलॉटमेंट भी बच गया। ये पहली बार आ रहा है 80,000। ऐसा कैसा बच गया? बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ, बहुत ज्यादा। अब क्वेश्चन अगर साइलेंट होता तो हम लोग ये 80 कहाँ एडजस्ट करते? फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करते। और फर्स्ट कॉल भी अब्सॉर्ब हो जाता तो हम लोग रिफंड करते। क्या फर्स्ट कॉल हो रहा है यहाँ पे? देखो कितना होगा? 80 into 7 5,60,000 चाहिए और 80,000 ही एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाता। लेकिन इधर पढ़ो क्या दिया क्वेश्चन। हाँ, इधर वो लोग ने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट नहीं किया और क्या किया? रिफंड। तो व्हाट इज योर रिफंड अमाउंट? 80,000। इज इट क्लियर? गॉट इट? अभी एंट्री करनी है। एंट्री तो बहुत सिंपल है, 5 एंट्री, 6 एंट्री का समय, 5 6 बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताओ डेट्स, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पढ़ो। कभी आया एप्लीकेशन का पैसा? 1 जुलाई 16 मिला। 1 जुलाई 16 कितना आएगा बताओ? सोच कितना आएगा एप्लीकेशन में? बताओ कितना शेयर पे पैसा आया? बोलो। इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख की 355 वही 3,55,000 into 2 7,10,000। Is that right? This is application received. Application received. Am I right? Is this clear? अभी सेकेंड एंट्री में बहुत कमाल होने वाला है। कब हो रहा है? देखो अलॉटमेंट वाज मेड, इसको दिया रहेगा अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई। तो इसका ट्रांसफर एंट्री का डेट क्या होगा? 10 जुलाई। वो 2 और 3 का डेट विल रिमेन सेम। तो 10 जुलाई 16 क्या करेंगे? इक्विटी शेयर वही है ना,
10th July 2016 equity share application account debit to what सोच के बताना equity share capital to what equity share allotment to what bank ये बैंक क्यों आया ये कैटेगरी का एक्सेस रिफंड हो रहा है दिख रहा है बट अगर वो रिफंड का इन्फो ना दिया होता तो इधर एंट्री हो जाती टू इक्विटी शेयर फर्स्ट और फिर जब फर्स्ट कॉल रिसीव करते हैं ना तो 80,000 कम रिसीव फर्स्ट कॉल जब रिसीव करते तो भी 80,000 कम रिसीव बात समझ में आई ऐसा है ओके अगर तो प्रॉब्लम would have been silent कि एक्सेस पैसे का क्या करना है you would have transferred it to first instead of refund but they have asked us to refund excess money on application being excess money on allotment being refunded okay now आराम से सोचो अमाउंट्स कैसे लिखेंगे इधर तो 7 लाख 10 सोचो कैपिटल में कितना ट्रांसफर करूं कितना इश्यूड शेयर्स है हाँ 1 लाख into 2 इधर तो 2 लाख ही जाएगा ना 7 लाख 10 में से 2 लाख ही जाएगा कैपिटल में है ना बराबर है चलो बैंक नहीं ढूंढते पहले अलॉटमेंट ढूंढते अलॉटमेंट में किसका सरप्लस एडजस्ट हो रहा है कैटेगरी ए का है बी का है कितना एडजस्ट हो रहा है 30,000 सी का है कितना एडजस्ट हो रहा है 4 लाख तो कितना एडजस्ट होगा टोटल अलॉटमेंट 4 lakh plus 30,000 which is 4 lakh 30,000 समझ आया कैसे आया 4 lakh 30 हेलो नहीं समझा इधर ये कैटेगरी का 30 एक्सेस है मिला और ये कैटेगरी का 4 lakh 30 के 4 lakh सॉरी 4 lakh 80 के 4 lakh 80,000 और एक्स्ट्रा अलॉटमेंट खाने के बाद अपने को अलॉटमेंट तक देखना है कितना एडजस्ट होगा 430 और रिफंड कितना होगा 80,000 कैसे आया समझा खाली थर्ड कैटेगरी का एक्सेस था अलॉटमेंट अब्सॉर्ब करने के बाद इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फो वी वुड हैव ट्रांसफर्ड इट टू फर्स्ट कॉल बट क्वेश्चन बोल रहे दैट्स व्हाई वी आर रिफंडिंग सो this is same application transferred and excess adjusted and refunded excess partly refunded and partly transferred to allotment okay what's your third entry अभी third entry का डेट क्या होगा बोलो थर्ड एंट्री का डेट विल बी अगेन व्हाट 10th of जुलाई बराबर है ये क्या एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू व्हाट इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट ड्यू में कोई चेंज करना है क्या आएगा अमाउंट इधर 5 lakhs कैपिटल में कितना 1 lakh into 1 लाख एंड प्रीमियम कितना 1 lakh into 4 that is 4 lakhs सही बात this is allotment due with premium allotment due with premium युग अरहम ओमकार तीनों मुंह बंद रखो ये आया आपका अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम बराबर है उसके बाद रिसीव करना है सो व्हाट इज द एंट्री फॉर रिसीविंग द मनी बताओ बैंक टू अलॉटमेंट आएगा रिसीव की डेट दी गई है कि नहीं देखो रिसीव की डेट दी गई है अलॉटमेंट रिसीव दिया है कुछ आई डोंट थिंक सो तो पुट अ डैश नहीं पता तो छोड़ दो ओके बैंक टू अलॉटमेंट क्या आएगा क्या 5 लाख लिखूं 1 लाख 4 लाख
70,000 5 में से 430 ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, तो मिलेगा कितना 70। कैन एनीवन टेल मी ये 70,000 सारा भरा तो किसने भरा? एक तो ये लोग ने भरा होगा क्योंकि इनका कुछ एक्सेस नहीं था, लेकिन ये लोग ने कितना भरा होगा? 5,000 into 5 ही भरा होगा, 25 भरा होगा। बाकी 45 किसने भरा? बी कैटेगरी ने भी भरा है। अभी तुमने वेरीफाई किया था ना नोट के वक्त, इनका कितना एक्सेस एडजस्ट हुआ है? बी कैटेगरी का सिर्फ 30,000, वे आर सपोज्ड टू पे 75, 45 अभी भरा, समझा? 75 भरना था जिसमें से 30 एक्सेस एडजस्ट हो गया है, 45 भरा, 45 इसने भरा और 25 इसने भरा, दैट वेट इज 70,000। खाली वेरिफिकेशन। अदरवाइज तो अपना स्ट्रेट फंड है 5 लाख माइनस 4 लाख है, जो हमेशा करें। मेन ये था, ये समझ में आया 430, 4 लाख फ्रॉम दिस एंड 30,000 फ्रॉम बी कैटेगरी। सो दिस इज अलॉटमेंट रिसीव। देन यू गो फॉर फर्स्ट कॉल। अभी ये नहीं पता तो ये डेट भी डैश, क्योंकि ये दोनों डेट सेम है। तो दिस इज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रहेगा? बोलो। हाँ 1 लाख इंटू 7 7 लाख बराबर 6। ये लो, दिस इज फर्स्ट कॉल ड्यू, am I right? And then I think received on 30th April, last date दिया है 30th April 17, bank to equity share first and final call। कितना पैसा मिलेगा? Will you receive 7 lakhs? No, 80 माइनस होगा ना, वो रिफंड हो चुका है तो पूरा पैसा मिल जाए। Everyone is at par. So first call. What if ये 80 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ होता तो 6,20,000 मिलता है, समझा? फिर ऊपर रिफंड नहीं होता, इधर क्या हो जाता? बैंक के जगह फर्स्ट कॉल है। Got it? That completes your That's it for today. starting with debenture। सर 10 मिनट ऐसे। सर ब्रेक ले लो। 25 मिनट सवा सर 7। 5 मिनट सर 5 मिनट नेक्स्ट सर 5 मिनट नेक्स्ट सर। चलो सर सब देते हैं। आप 5 मिनट तो ओवर 5 मिनट हो रही है। प्लीज बी क्वाइट। अभी इसमें नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब मॉड्यूल में ना नोट बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया है। अब वो नहीं बना कि ये नोट बनाओगे चलेगा, इज इट क्लियर? वो समझ में आता है तो बनाओ, वरना दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। दिस इज सिंपलर। यू कैन मेक दीस 2 नोट्स जो मैंने बताया आपको एप्लीकेशन। ये कैटेगरी सी एंड कैटेगरी बी करेंगे, ओके? नोट्स आर फाइन, छोटे ही लोग लास्ट में सारे बैलेंस, नो नीड टू लीव पेजेस फॉर बैलेंस, ओके? व्हाट हैपेंड नाउ? पे अटेंशन। देखो debentures. See, what is the difference between a share and a debenture? A share means part of capital, ownership, part of business, part of ownership capital. What is a debenture? Part of loan. A part of loan. So debenture holders are not owners. They are loan givers of the company. They are business दो जगह से फंड रेज कर सकता है, या तो शेयर्स खुद का पैसा, या तो लोन आउटसाइड। तो उसको चाहिए तो इट कैन गो टू बैंक एंड टेक अ लोन, इट कैन गो टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इट कैन टेक अ लोन, ओके? या फिर इट कैन रेज मनी वाया डिबेंचर्स आल्सो एंड टेक अ लोन, ओके? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का थोड़ा अमाउंट का लिमिट्स रहता है। डिबेंचर में योर अमाउंट्स आर ह्यूज, ज्यादा अमाउंट्स आप रेज कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज रहता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में प्रोसेस थोड़ा टीडियस रहता है, मतलब 10 जगह ड्यू डिलिजेंस, ये चेक्स वो चेक्स, करेगा नहीं करेगा,
डिबेंचर्स से पैसा रेज करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर है, ओके, बिकॉज यू रेजिंग द फंड्स फ्रॉम मास पीपल। सो कंपनी का ऊपर चॉइस है, इफ दे वांट टू रेज अ लोन फ्रॉम बैंक दे कैन गो टू द बैंक एंड टेक द लोन, इफ दे वांट टू रेज द लोन थ्रू डिबेंचर्स दे कैन टेक। एडवांटेज क्या है, बड़ा अमाउंट रेज करना पॉसिबल है एंड कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा कम है, आपका जो फॉर्मेलिटीज है या चेक्स है वो थोड़ा कम है इन केस ऑफ व्हाट डिबेंचर्स। तो मास लोगों से आपको रेज करना है तो आप इजीली फंड्स रेज कर सकते हो थ्रू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का भी मार्केट होता है, डिबेंचर्स आर आल्सो डेट, उसका एक सेपरेट बॉन्ड मार्केट होता है। क्या होता है, जैसे शेयर मार्केट होता है वैसे बॉन्ड मार्केट होता है, और शेयर मार्केट से 10 टाइम्स वॉल्यूम्स होता है उधर बॉन्ड मार्केट में। कितना? शेयर मार्केट 10 गुना बड़ा होता है बॉन्ड मार्केट, ओके, जिसमें डिबेंचर्स डील होते हैं। बट डिबेंचर्स की वैल्यूज है ना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती। अब एक 100 रुपए का डिबेंचर है ना, मर मरा के 110 120 पे जाएगा या 80 90 पे आएगा, वही रेंज में घूमता रहेगा, उसमें ज्यादा वेरिएशन आता नहीं, वो एक रेंज बाउंड में घूमता है। क्यों? सिंपल सा कॉमन सेंस है। देखो शेयर का भाव बढ़ता क्यों है? कोई शेयर का प्राइस मार्केट में क्यों बढ़ेगा? द कंपनी इज मेकिंग हायर प्रॉफिट्स, वो किसको बिलोंग करता है? तो जितना प्रॉफिट करते जाएगा उतना वो शेयर का प्राइस बढ़ते जाएगा, बराबर है? तो प्रॉफिट बढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट, तो उतना आपका प्राइस बढ़ते जाएगा, और लॉस भी हुआ तो उतना प्राइस घटते जाएगा, ज्यादा जीरो हो जाएगा, बराबर है? बट डिबेंचर होल्डर्स, डू दे गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट? डू यू गिव लोन गिवर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट? नो। Do you give loan givers को share of profit? No. Loan givers को आप क्या देते हो? Interest देते हो. Please pay attention. Loan givers को आप क्या देते हो? Interest देते हो. तो डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? Interest मिलेगा। अब बताओ मुझे, कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट करे तो इज दैट डिबेंचर होल्डर कंसर्न? तो 100 करोड़ का प्रॉफिट करो या 1000 करोड़ का करो या 10,000 का करो, 10,000 करोड़ का करो, वो डिबेंचर होल्डर को तो उतना ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ज्यादा प्रॉफिट करो या कम, इवन इफ यू आर मेकिंग लॉसेस यू हैव टू पे इंटरेस्ट, इवन इफ यू आर मेकिंग लॉसेस यू हैव टू पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो झक मार के देना है। तो डिबेंचर होल्डर को तो क्या मिलने वाला है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर मेरे पास किसी कंपनी के डिबेंचर्स हैं और वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है तो कोई आएगा दूसरा बंदा हायर प्राइस देके खरीदने के लिए? सोचो जरा, बोलेगा मेरा 100 रुपए का डिबेंचर का मैं 120 150 170 देने के लिए रेडी हूं। इज इट पॉसिबल? शेयर्स में ये पॉसिबल है कि हायर द प्रॉफिट्स उतना वो शेयर का डिमांड बढ़ेगा, बट डिबेंचर में ये पॉसिबल नहीं है। तो डिबेंचर का भाव चेंज ही क्यों होता है? What is the reason behind change in the price of debenture? So it is not related to the company's obviously थोड़ा कंपनी का प्रॉफिट इम्पैक्ट करता है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, कि पैसा रिटर्न करेगा कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है लिटिल बिट, बट मोर इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाय द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है उस पे वो डिबेंचर का भाव चेंज होता है। कैसा? फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है समझो 8%, आरबीआई का जो रेपो रिवर्स रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है ना, दैट इज द आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो रेट से बैंक्स लोन वगैरह देते हैं सबको, और वो रेट से आपकी इकोनॉमी का जो चक्कर है पूरा लोन का चालू रहता है। एक दूसरे को बैंक्स एक दूसरे को लोन देते हैं, या आरबीआई बैंक से लेता है या बैंक पब्लिक को देता है। रेपो और रिवर्स रेपो, रेपो रिवर्स रेपो में हार्डली 0.25 का जितना फर्क रहता है, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली। सो इंटरेस्ट रेट ऑफ आरबीआई इज लेट्स से 8%। कितना है? 8%। और कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किया जिसका फेस वैल्यू 100 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। तो आरबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिबेंचर्स इश्यू हुआ है, बराबर है? तो 100 रुपए का डिबेंचर इश्यू होगा, पब्लिक देखेगा हाँ आरबीआई कितना दे रहा है, 8%। दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली गिवन बाय द बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग, जो लोन्स वगैरह मिल रहे हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पब्लिक देखेगा हाँ बाहर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है, तो
मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में डालेंगे तो 8% मिलेगा, डिबेंचर्स में डालेंगे तो भी 8% मिलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। बट आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8%, ओके, और डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेट्स से 10%, लेट्स से 6%, डिबेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो अब क्या होगा, अभी कंपनी इश्यू कर रहा है डिबेंचर एट 6% और आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8%। तो पब्लिक सोचेगा यार आरबीआई तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इकोनॉमी में 8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मतलब मैं बाहर के इन्वेस्ट करूं तो मुझे 8% मिलेगा, लेकिन यार डिबेंचर में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 6% ही मिलेगा, तो पब्लिक किधर भागेगा, बाहर भागेगा। तो डिबेंचर का डिमांड घटेगा तो प्राइस घट जाता है ना, डिमांड घटेगा तो कंपनी के पास चॉइस नहीं है, इश्यू करते वक्त झक मार के उसको डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू करना पड़ेगा। किस पे इश्यू करना पड़ेगा, डिस्काउंट पे इश्यू करना पड़ेगा। या अगर वो मार्केट में एग्जिस्टिंग डिबेंचर है तो ऑटोमेटिकली उसका भाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड घट जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस 100 से घटते 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 करीब करीब उस लेवल तक आ जाएगा जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का यील्ड 6% है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। 100 रुपए का प्राइस है, 6% है, तो कितना मिल रहा है डिबेंचर में, 6 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 6 रुपया मिल रहा है, और बाहर कितना मिल रहा है, 8 रुपया मिल रहा है। तो प्राइस घटते 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 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। कैलकुलेट करो, 6 as a percentage of 90. 6 is what percentage of 90? 6 upon 90 into, क्योंकि इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे मिलता है। फेस वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू 100 है, उस पे 6% करोगे तो 6 रुपया। 6 रुपीज एज अ परसेंटेज ऑफ 90 कितना होता है, 6 पॉइंट। अभी भी मार्केट में कितना मिल रहा है, 8%, और आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, 6 पॉइंट। इसको यील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यील्ड। यील्ड मतलब क्या, कितना मिला अपॉन प्राइस इनटू 100। कंपनी जो इंटरेस्ट देती है ना, दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो कंपनी 6 रुपया ही देगी आपको, लेकिन डिमांड घटने की वजह से वो डिबेंचर का प्राइस क्या हो रहा है, 100 से कितना हो गया, 90 हो गया। रहेगा 90 पे कि और घटेगा, और घटेगा, क्योंकि बाहर कितना मिल रहा है, 8%, और अभी भी 6.67, ये घट के 80 हो गया। कितना है, 7.5% हो गया, दिख रहा है, 7.5% हो गया, और घटेगा, घटेगा करीब करीब 75। कितना हुआ अभी, 8% एग्जैक्ट। तो करीब करीब 75, 76, 77 पे आके वो डिबेंचर्स रुक जाए, ऐसा है। इज इट क्लियर? इनफैक्ट 75, 76 नहीं, इनफैक्ट उससे भी कम घटेगा, उससे भी ज्यादा घटेगा, मतलब 73, 74 जितना आ जाएगा, 73, 74 पे आके रुकेगा वो। क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सेफ रहता है, और आप कंपनीज में इन्वेस्ट करो तो थोड़ा रिस्की रहता है। तो ऑब्वियसली उधर आपको 8% ऐसे बैठे बैठे मिल रहा है, तो कंपनी में आप क्या सोचोगे, 8% मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना, ज्यादा मिलना। तो ये प्राइस जा जाके रुकेगा करीब करीब 72, 73, 74, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? तो क्या होता है, जब भी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर रहता है, तब डिबेंचर्स का भाव घटते जाता है। जब भी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, आरबीआई कब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इट स्टार्ट्स रेजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कोविड आया तो सब रिसेशन हो गया, कोई कुछ खरीदने नहीं जा रहा है, सब घर पे बैठे हैं, इंडस्ट्री बंद, फैक्ट्री बंद। तो बूस्ट करना था आरबीआई को, डिमांड बूस्ट करना था, तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या किया, घटाया 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 घटाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने से क्या होता है, लोन सस्ता मिलता है, लोन सस्ता मिला तो प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो चीजों का सप्लाई बढ़ा, चीजों को लोग जाएंगे, पैसा सस्ता हुआ, पब्लिक के हाथ में ज्यादा पैसा आया, तो वो लोग खरीदेंगे, मतलब प्रॉफिट, पब्लिक के हाथ में ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो लोग चीजें खरीदेंगे, तो बूस्टअप होगा डिमांड। फिर तब तो घटा दिया आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर कोविड के बाद क्या हुआ, जुट करके डिमांड बढ़ने लगा, सब लोग सब खरीदने लगे,
सब लोग सब खरीदने लगे, पैसा स्पेंड करने लगे, तो क्या हुआ, चीजों का भाव बढ़ गया तो इन्फ्लेशन हो गया तो गरीब लोग का तो वाट लग जाता है उसमें। तो आरबीआई क्या करती है, फिर स्क्रू टाइट करती है और क्या करने जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते जाती है। तो 2%, 2.5% जितना हो गया तो वो बढ़ाते 6-7% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके गया था। तो वही चीज में जब कोविड आया था तब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा था, तब बॉन्ड्स का डिमांड बढ़ते जाता है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो बॉन्ड्स का डिमांड घटते जाता है। अब हमने ये एग्जांपल तो देखा कि बॉन्ड्स का डिमांड घटता कैसे, अभी उसका उल्टा देखते हैं। आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कंपनी जो लॉन्च कर रहा है डिबेंचर उसका 10% है, उसका क्या है 10% है। तो अभी इन्वेस्टर सोचेगा यार आरबीआई का 8% है, कंपनी तो 10% दे रहा है, तो किधर भागेंगे सब लोग कंपनी में भागेंगे, हमें भी चाहिए, रे तो 10% दे रहा है, तो कंपनी भी शान है, बोलेगा हाँ भाई आओ हमारे पास 10% दे रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें पूरा 10% खाने देंगे नहीं। तो कंपनी क्या करेगा, अपना डिबेंचर प्रीमियम पे लॉन्च करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। तो 100 रुपए पे उसको 8%, 8 रुपीज 100 रुपए पे कितना है 10%, कंपनी 10% दे रहा है, 100 रुपए का 10% कितना होता है 10 रुपीज, राइट। तो 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए पे लॉन्च नहीं करेगा, वो लॉन्च करेगा 110 में सपोज, तो क्या रिटर्न हुआ 9.09%, 9.09%। अभी भी बाहर कितना मिल रहा है, आरबीआई का कितना मिल रहा है 8%। कंपनी में पहले 10% मिल रहा था, लेकिन कंपनी ने क्या किया, इश्यू एट प्रीमियम कर दिया, हायर प्राइस पे लॉन्च किया। अभी डिबेंचर होल्डर को वो डिबेंचर 100 में नहीं मिलेगा, कितने में मिलेगा 110 में मिलेगा, 110 में भी नहीं मिलेगा, चलो 120 कर दिया तो कितना हुआ 8.3। इधर कहीं आके आपका प्राइस रुकेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग समथिंग हायर एज कंपेयर्ड टू द नॉर्मल इकोनॉमी का रिटर्न। तो 120 में करेगा। इन शॉर्ट डिबेंचर का भाव क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस अपना बेसिक इकोनॉमिक्स इट इज, डिमांड बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा, और डिमांड घटा तो प्राइस घटा। बट डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है। ये वो है वो तुम लोगों ने किया है ना, उसका कोरोलरी किया कि नहीं, कॉमन मेरे भाइयों सुनो, अन्ना इडली बेचता है रोज, अन्ना इडली 400 इडली बेचता है 25 रुपए में, कल उसके 800 में पहुंचेगा 30 रुपए में, 400 प्लेट बेचता है रोज, कल उसके 800 लोग आ गया, वो क्या करेगा, बढ़ाएगा कि घटाएगा, पक्का ना घटाता है। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। सर आप गलत कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, सर कोई भी चीज का कॉमन सेंस का चीज है, कोई भी चीज कमोडिटी में अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो प्राइस विल इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज होता है तो प्राइस विल इंक्रीज, कॉमन सेंस। अभी एक चीज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, आज से 15 साल पहले कुत्ते को भी मालूम नहीं था बिटकॉइन क्या है, ओके, कुत्ते को आज भी मालूम नहीं है, और 15 साल पहले किसी को भी मालूम नहीं था बिटकॉइन क्या है, ठीक है। तो 1 रुपए का 3 मिलता था, कितना 1 रुपए का 3 बिटकॉइन है 2009 में, किसी को भी पता नहीं था। सो द डिमांड वाज नेग्लिजिबल एंड द डिमांड स्टार्टेड इंक्रीजिंग, सबको पता चलने लगा, तो प्राइस क्या होने लगा, क्योंकि तू 10 रुपया देने को रेडी है, कोई और 20, कोई और 25, कोई और 30, कोई और 40, कोई और 50, जितना डिमांड बढ़ता है उतना मुंह बढ़ता है ना बोली लगाने वाला, तो उतना आपका प्राइस बढ़ते जाएगा। कॉमन सेंस समझ में आ रहा है। तो ऐसा
डिबेंचर्स के केस में ध्यान क्या रखना है कि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर इश्यू का कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो सब लोग किधर भागेंगे? डिबेंचर्स के। सो ऑटोमेटिकली प्राइस ऑफ डिबेंचर्स विल इंक्रीज, 100 का हो जाएगा 120। ऑन द अदर हैंड द आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड द डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 एंड डिबेंचर का इंटरेस्ट इज 6। देखो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू। तो 100 का 6% कितना है? 6 रुपीज। मिलेगा उसको 6 रुपीज, मिलेगा उसको 6 रुपीज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मिलेगा उसको 6 रुपया